गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मैलोनिक एस्टर से अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस, बारबिक यूरिक एसिड का सिंथेसिस एंड साइक्लोएल्केन्स का सिंथेसिस। Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, R.N. Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, Sikar. So today we start our topic, synthesis of amino acids. So what we are doing, जैसा हम करते आए हैं, we are taking malonic ester, हमें बनाना है ये फिनाइल एलेनिन। हमें फिनाइल एलेनिन का सिंथेसिस करना है। मैलोनिक एस्टर, इसका हम सोडियम सॉल्ट बनाते हैं, मोनोसोडियम सॉल्ट, देन फॉर्मेशन ऑफ मोनोसोडियम सॉल्ट एंड इट विल रिएक्ट विद बेंजील क्लोराइड। दिस इज alkylation as per our requirement. So alkylation with benzyl chloride. So this is the formation of our product. Now further what we are doing, hydrolysis. So what's going on here? Like this. This is the formation of next content. Further bromination is going on with ether. यहां पर ब्रोमिनेशन कहां होता है? इसके रेस्पेक्ट में अल्फा। ये जो हाइड्रोजन होता है, दिस विल रिमूव लाइक दिस HBr एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्फा ब्रोमो मैलोनिक एसिड एंड व्हाट वी कैन से alkyl substituted alpha bromo मैलोनिक एसिड. Now further decarboxylation is going on. हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, यहां पर decarboxylation होगा, removal of carbon dioxide and formation of this type of compound. Further in excess NH3 we react with excess NH3, then this Br is replaced by like this HBr and formation of this type of amino acid. Now अमीनो एसिड्स के बारे में, जो अमीनो एसिड्स हैं वो ज्यूटर आयन फॉर्म करते हैं, डाइपोलर आयन ज्यूटर आयन फॉर्म करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, दिस विल कम हियर, so this form is like this and this is like this. So these are two poles and this is the formation of ज्यूटर आयन and this is the formula of phenylalanine. मैं आपको एक बात बताऊं कि अमीनो एसिड्स, this is the formula of acid. This is the formula of acid. Okay? हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी एसिड्स. So this is the formula of हाइड्रोक्सी एसिड्स. Okay? हम क्या पढ़ते हैं? हेलो एसिड्स. So this is the formation of हेलो एसिड्स. Fine? हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? अमीनो एसिड्स. So this is the formation of amino acids. यानी amino acids is having amino as well as acid group. So this is the initial amino acid. The name is glycine. This is the name. The name is glycine. Here हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस करें और इसमें जोड़ दें CH3, CH, NH2, COOH. So this is the formation of alanine. हमने क्या किया? एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, NH2 ग्रुप लगाया. So this is the formation of glycine, is the first amino acid. Now हम इसमें एक हाइड्रोजन और रिप्लेस किया, ऐड कर दिया मिथाइल ग्रुप. So this is the formation of alanine. Now इस मिथाइल ग्रुप में एक हमने जोड़ दिया phenyl group. So this is called phenylalanine and synthesis
like this. So this is the, कहना चाहिए formation of the formula, name of the formula, कैसे आपको इसको याद करना है. We start from glycine, then alanine, then phenylalanine. So this is the formation of phenylalanine. आपके सिलेबस की जो बुक है उसमें इसी का वर्णन किया गया है, इसी का एग्जाम्पल दिया गया है. लेकिन एग्जाम्स में मैंने देखा है, पिछले साल के एग्जाम्स में, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कई सत्र में इस तरह का कई सालों में, पिछले सालों में इस तरह का सवाल पूछा है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन फ्रॉम मैलोनिक एस्टर. तो इसको भी मैं यहां पर डिस्क्राइब कर दूं that malonic ester react with nitrous acid, so removal of water molecule, और इसके रेस्पेक्ट में this is alpha, so this is alpha nitroso malonic ester. Here reaction with zinc and acetic acid, so this is the reduction. अब चेंज होगा यहाँ पर, and this nitroso group will convert in the amino group. So this is the alpha amino, like this, alpha nitroso malonic ester, and this is alpha amino malonic ester. Further, हमें करना क्या है यहाँ पर, हम करा रहे हैं यहाँ पर एसिटाइलेशन. इस एसिटाइलेशन की यहाँ जरूरत क्यों पड़ी? हम इसका डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पहले क्या करना होगा, इस एमिनो ग्रुप को पहले हमें प्रोटेक्ट करना होगा. हम इसको यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, सो दैट हम यहाँ इसका करा देंगे एसिटाइलेशन, सो दैट फॉर्मेशन, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस. फर्दर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे और इसको गर्म करेंगे, तो इस तरह से जल अपघटन होकर के ये एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा. पहले स्टेप में तो इस तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा इस एसिटाइल ग्रुप का, और इन दो एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होगा. एंड द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहां पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सो दैट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लाइसिन. जैसा मैंने आपको यहां बताया, फर्स्ट ग्लाइसिन, नेक्स्ट this is the alanine, and further this is the phenylalanine. So this is the synthesis of amino acids from malonic ester. Now next synthesis, this is the 15th part of this chapter and last one. Now synthesis of malonyl, synthesis of सिंथेसिस ऑफ मेलोनाइल यूरिया और बार्बिक यूरिक एसिड. बच्चों, मैंने आपको मेलोनिक एस्टर जिस पार्ट में मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था. This is the
malonic ester. So what we are doing? Synthesis of malonyl urea. This will react with urea यहां पर टू मॉलिक्यूल इथाइल ग्लिकोल बाहर निकलते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ this type of compound, and this is called malonyl urea or barbate uric acid. Examination के point of view से this is very important. Synthesis of amino acids, synthesis of malonyl urea, ये दोनों बहुत important है. मैंने आपको एसिटो-एसिटिक एस्टर में भी यूरिया की रिएक्शन बताई थी और वहां बन रहा था 4-methyl uracil और यहां बन रहा है malonyl urea या barbate uric acid. You must remember, दोनों का आपको डिफरेंशिएट करके ध्यान रखना है. Now further, now this is the synthesis of alicyclic compounds. यहां पर इस तरह के कंपाउंड्स, this is aliphatic. This is the aliphatic compound. Name is N-butane. आप 11th-12th से चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैं एक बार इसको एक सामान्य तरीके से आपको बता दूं. This is butane, this is aliphatic. यहाँ पर एली शब्द ले लिया और इन कार्बन को जोड़ दिया and formation of this type of compound, and this is the alicyclic compound. बच्चों, इसके इनको हम कह देते हैं साइक्लोएल्केन. एल्केन्स जो चक्रीय होते हैं, साइक्लोएल्केन्स. और इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग के अंदर सब कार्बन होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. और सारे क्या हैं इसमें? कार्बन 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 कार्बन. तो दीज आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक. So these are 4 names of alicyclic compounds. Alicyclic, aliphatic जो साइक्लिक होते हैं, साइक्लोएल्केन्स, एल्केन्स जो चक्रीय होते हैं, कार्बोसाइक्लिक चक्र में सभी कार्बन होते हैं, एंड होमोसाइक्लिक सभी सजातीय होते हैं, समान परमाणु होते हैं. तो इस तरह से आपको इसको इनिशियली ध्यान रखना जरूरी है. Now further, how we will prepare? So we can prepare this by in 2 steps. First is this is sodium salt formation. This is the sodium salt formation, and here what we are getting? इसको कभी भी आप इसको इस तरह से नहीं लिखिएगा. दिस इज रॉन्ग. हमेशा आप इसको इस, हो सकता है बुक्स के अंदर मिसप्रिंटिंग हो, तो यू मस्ट राइट लाइक दिस एंड फॉर्मेशन लाइक दिस. This is the disodium salt of
malonic ester. This is the disodium salt of malonic ester. Now what we are doing, हमें बनाना क्या है, ये बनाना है साइक्लोप्रोपेन, इसका सिंथेसिस करना है. Then what we are doing here, this is 1,2-dihomoethane react with this is disodium salt of malonic ester. Now removal of this, and formation of now further what we are doing here, इसको हम पहले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, एंड इन द सेकंड स्टेप इसको हम यहां गर्म करते हैं. हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, किस तरह से, एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं. नाउ फॉर्मेशन ऑफ like this. Now in the second step, एक कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, so that decarboxylation, removal of CO2 and formation of this. Now further we are using this is soda lime. This is the soda lime for complete decarboxylation. This is for the complete decarboxylation and removal of this CO2 and formation of this is the cyclopropane. This is the formation of cyclopropane. So this is the first method by which we can prepare cyclopropane. Now one more method is here जो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा साइक्लोप्रोपेन, यू कैन सिंथेसाइज बाय दिस मेथड, बट अगर पूछा साइक्लोब्यूटेन एंड फर्दर सो ऑन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, तो उसके लिए सेकंड मेथड आपको जानना बहुत जरूरी है. Now preparation of cyclobutane. Preparation of cyclobutane. So what we are doing here, again cyclobutane, इसका सिंथेसिस हमें करना है. Fine. So what we are doing here, first of all, preparation of malonic ester. This react with formation of
sodium salt. So here what we are doing here, this is the monosodium salt of malonic acid. Now what we are doing further, this react with one two dibromoethane. This react with प्लस हमने यहाँ दो मॉलिक्यूल प्रिपेयर किए हैं मोनोसोडियम सॉल्ट के, तो लाइक दिस, so removal of two NaBr. Now information of formation of this. Now what we are doing further? Again sodium salt and preparation of like this. Further, this will react with I2 or CH2 whole N I2, so that removal of 2 NaI and formation of now further hydrolysis is going on. Now like this, ये आप सबके लिए मान लीजिए इस तरह से OH H, यहां पर भी OH H OH H OH H, सबके लिए आप मानिए, और यहां फॉर्मेशन होगा like this. इसको हम गर्म करते हैं, then removal of CO2
and formation of and further we are using what? NaOH plus CO. This is the soda line for complete decarboxylation. For the complete decarboxylation and formation of removal of this and formation of this type of compound, this is the cyclobutane. Fine. So this is the process by which we will prepare further साइक्लोप्रोपेन के बाद वाले कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो अगर आपसे पूछते हैं प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन तो यू अडॉप्ट दिस मेथड। तो व्हाट वी हियर what we are doing, I2 और CH2 whole and I2, if we are using, इसकी जगह हमने इसको यूज कर लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा CH2, हमने यहां पर यूज किया n बराबर 1, यहां पर CH2, here CH2, and this is the preparation of cyclopentane। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट इनोलेट्स। ये आपकी इनोलेट यूनिट कंप्लीट हो गई। ये हमने 15 पार्ट्स में कंप्लीट की है। वैसे इन जनरल इसे पढ़ाने में मैक्सिमम 7 आवर्स और 6 आवर्स 6 to 7 आवर्स इसे लगते हैं, लेकिन हमने चूंकि इसे छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है, कोई पार्ट 20 मिनट का है, कोई पार्ट 30 मिनट का है, तो इसलिए यहां पर 15 पार्ट बने हैं। आप सिस्टमेटिकली एक एक पार्ट को आप देखें और इनका अध्ययन करें। तो थैंक यू।